তো দেখো কেমনে এই স্টকটা বা কোনো স্টকে লাভ হওয়ার পর মানুষ কিভাবে লোভে ট্রাপ হয়, তার এই জন্য এই ভিডিওটি বোনা। তো ভালো করে শুনো। যখন প্রথমে লিলি তখন আমার 2600 লাভ হয়েছে। সেই লাভটা কিভাবে হইলো এবং পরে কিভাবে আমি ফময় আসিয়ে বা যা হোক মার্কেট আমাকে बुलाइছে, मगर हमें जाएंची मतलब क्या करना चाहिए, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बट हमें जाएंची। तो সেইটা নিয়েই এই ভিডিওটা বলছে। তো আমি দেখলি সালা কোয়েন্টিসিয়াসটাই প্রথমেই ফিউচার্সে স্পন্সার করছে। তো তখন দেখছি যে ইচিনটা এত টাইম পাস কেনে করছে মার্কেট, মানে এতটা নিচে আসার পরে মার্কেট আরও নিচে কেনে নাইছি। এইগুলাই দেখেছিলি আমি, এইগুলাই জাস্ট এই। তো তখনটা আমি বুঝলি যে যখন আমি 1 ঘন্টার ক্যান্ডেলে গেলি, তখনটা আমি পারফেক্ট দেখা পাচ্ছি যে একটা সাপোর্ট লেভেল আছে। আর একটা আমি কি তারকা পালি যে যখন আমি 1 ডে ক্যান্ডেলে গেলি তখন দেখছি শালা লাগাতার 4-5 দিন 6 দিন মার্কেট নিচে আসছে। তারপরে তো আছে মার্কেট যখন লাগাতার 1 ডে 4-5 দিন টাকা কামাবে, তার মানে যারা সেলার্সে টাকা কামাবে 4-5 দিন, তারপরে তো বায়াসরাও কামাবে, মানে তারাই শিফট হবে, যাও একই ব্যাপার। তো আমার ডাউট রয়ে গেলো যে মার্কেট নিশ্চয়ই এই লেভেলটাকে সাপোর্ট নিয়ে উপরে যাবে, ঠিক আছে। তখন বলি আচ্ছা সাপোর্ট নিয়ে যাবে। তো আমি কী করলি, জলদি নিজের অ্যাকাউন্টে টাকা ঢোকালি। এই ক্যান্ডেলটাই নিয়ে নিলে আমি এন্ট্রি, এই বড় গ্রিন ক্যান্ডেলটা বলি এয়ারপোর্ট থেকে তো মার্কেট উপরে যাবে কি, কারণ যেহেতু বড় বায়াস চলে আসিছে, ঠিক আছে। আমি গ্রিন ক্যান্ডেলটি দেখে বুঝলি যে হয়তো বায়াস আসিছে, বাট সেগুলো বায়ার্স নয়, মানে ভালোভাবে সাপোর্ট লাইন লেই নাই, তার মানে ওটি অপারেটারের ক্যান্ডেল নয়। অপারেটারের ক্যান্ডেল হচ্ছে দেখো আগে একটি হামার টাইপের যে লাল রেড ক্যান্ডেল বানাইছে, তারপরে যে বড় গ্রিন ক্যান্ডেলটি বানাইছে সেইটি হচ্ছে অপারেটারের ক্যান্ডেল। আর মার্কেট দেখ কত হারামি, সারা শুটিং স্টার দিচ্ছে, বুঝছে সে নিচে যাবে। তো ছাড়ো, মার্কেট যত কাণ্ড করছে ছাড়ো, গৌতম ভাই কি বলেছে সেটা শুন। এইগুলাই বায়ার্সের খিচড়ি আছে। গৌতম ভাই বলেছে যে যদি মার্কেট নিচে যায়, নিচে যাওয়ার পরে একটা লেভেল হয়তো থাকে, সেই লেভেলটাকে যদি টাচ করে বা টাচ না করে যদি মার্কেটকে উঠতে হয়, তবে কি করে না, প্রথমে একটি অপারেটারের একটি বড় গ্রিন ক্যান্ডেল তৈরি করে, ঠিক আছে। তো অপারেটারের ক্যান্ডেল তৈরি করার আগে যে বায়ার্সের খিচড়ি আছে এই জায়গাটাই, এর আগে তো আগে সবকে বাইরাবে কে, আর বাইরায় নিয়ে মার্কেট উপর যাবে। তো দেখো বায়ার্সের আগে যে হ্যামার টাইপের যে রেড ক্যান্ডেলটি বানাচ্ছে, এটা সব বায়ার্সকে বাইরে আনছে, তারপর মার্কেট উপর গেছে, ঠিক আছে। তখনই বড় গ্রিন ক্যান্ডেলকে ব্রেক করলো এই জায়গাটাই, তখনই আমি কি নিয়ে নিলি, এন্ট্রি নিয়ে নিলি গৌতম ভাইয়ের কথার জন্য। তার জন্য আমার এই 2600 টাকা লাভ হইলো। তারপরে লাভ হওয়ার পরে কী করলো, মার্কেট তো উপর চলে গেল, আমি নিজের লাভ নিয়ে এক্সিট করে নিলি। টোটালি 2600 টাকার লাভ নিয়ে আমি টোটালি এক্সিট করে নিলি, ঠিক আছে। এক্সিট করার পরে কী করলো, কোয়েন্টিসিএক্সে যে প্রথমে স্পন্সার করতে রয়ে এই স্টকটাকে, সেই স্পন্সার করাটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করার একটা কারণ আছে, চলো বলছি। তো স্টকটা উপর যাওয়ার পর সে আবার যখন নিচে এলো বা হয়তো উপর যাওয়ার টাইমেই কোয়েন্টিসিএক্স স্পন্সার করা বন্ধ করে দিল। তার কারণ যে বায়ার্সরা তোমার টাকা কামাইলো, সেই বায়ার্সরা এই স্টকটাই টাকা কামার পরে হয়তো কিছুক্ষণ পরে 1 ঘন্টা পর 2 ঘন্টা পর, বা হয়তো প্রথমে ওর মাইন্ডটা করবে যে না আজ এই ট্রেডটাই আমার লাভ হয়েছে আর লেবো নেই, বাট একবার তো দেখি। সেই যখনই সে দেখতে যাবে তখনই সে ট্রাপ হবে। কারণটা শুনো, যাই দেখাচ্ছে নাই কি বলে কোয়েন্টিসিএক্স স্পন্সারে দেখায় নাই, ও নিজের কি চালাকি বুদ্ধি করেছে যে লাভ করেছে, মানে আমি যে লাভ করেছি ন অর্ডার্সের হিস্টোরি যায় দেখি যে স্পন্সারে দেখাচ্ছে নাই, তো কী হয়েছে, অর্ডার্সের হিস্টোরি তো আছে শেয়ারটা আমি আরও টাকা কামাবো, বাট মার্কেটে ভুলা আছে ওকে। তো এই টাইমটা কী করতে হবে না, বুলাতি হয় মগর জানে কা নেই। আর যদি যাবে তো প্রপার প্ল্যানিং নিয়ে যায়, যেটা বলছি আমি একটু পরে। তো ফার্স্ট অপারেটারের যে এন্ট্রি আছে হায়ার, মানে অতদিন ল ছিল মার্কেট, বাট যখন হাই নিয়ে বা যে সাপোর্ট লাইনটা নিয়েছে, সেই অপারেটারের যে এন্ট্রি পয়েন্ট, সেই এন্ট্রি পয়েন্টের উপর গিলা হবে তোমার পরের দিনের এন্ট্রি। তো দেখো এখন যেটা মেন ট্র্যাপ, সেটা হচ্ছে মার্কেট তো নিচে আসে গেছে, যারা আগে লাভ করেছে মার্কেট ভাবছে এই তিনটাল নিশ্চয়ই উপর যাবে, কিন্তু যেমনি তারা বাড়ি করবে, আর এই জায়গাটায় হেভি রিটার্ন দেয়, ঠিক আছে। এই টাইম পাস যে করছে তো এই জায়গাটা হেভি রিটার্ন দেয়, মানে একটি ক্যান্ডেলে 1000 1500 2000 টাকা বনবে। তাই ভালো করিয়ে
এন্ট্রি নিবে ভাই, নাই তো এই জায়গাটাই ধাসার মানে ধাসাই যাবে। মানে আমার এক কথাই বলে তো, যদি যদি পিন পয়েন্ট অ্যাকুরেসিভাবে যদি নেক্সট কি বলে ওটাকে অপারেটারের যদি এন্ট্রি পাইস, তাহলে সেই জায়গাটায় বাই কর। এবং বাই না পালেও তুমি এই জায়গাটায় সুইং হাই মানে সুইং ট্রেডিং করতে পারো, যেটা গৌতম ভাই বলেছে, মানে যেটা সবারলে সুইং ট্রেডিং, মানে যেটা সবার থেকে নিচে যাবে কে যে সুইটি, সেই সুইটিয়ে তোমাকে ট্রেডিং নিতে হবে, ঠিক আছে? তাহলেই তুমি এই জায়গাটায় পারবে কি বলে ওটাকে এন্ট্রি নিতে, নাহলে এই জায়গাটা এন্ট্রি নিয়ে কোনো লাভ নাই, ঠিক আছে? তো আমার উচিতে এক কথা এন্ট্রি না নিলেই ভালো। আর যদি এন্ট্রি নিবেই তো রিস্ক আছে বহুত, সেটা বুঝে সুঝে নিবে, যেটা গৌতম ভাইয়ের দু একটা ভিডিও আমি অ্যাড করছি এই ভিডিওটাতেই, তো দেখো ভালো করে। এই তো যা হোক 700-2600 কামালি, ওইটার জন্য আমার বেশি ট্রেড লিবো নাই, যেহেতু আমার মোটামুটি মাইন্ডসেট বনিয়ে নিয়েছে। অনেক লোকে ভাববে যে কি বলে হয়তো কারো 1000-এ হয়তো 5000 বনিয়ে গেলে এই জায়গাটায় 5000 পুরা লাগাই নেবে, সেই টাকাটা সব উড়াবার জন্য। আর এটা হচ্ছে সাইড বেস মার্কেট, এরকম সাইড বেস মার্কেটে ট্রেড লিবারেই নয়, ঠিক আছে? তো এই সাইড বেসটা বনে তার সাইকোলজিটা তো বুঝতে পারলে যে মার্কেট। আরেকটা সাইকোলজি আছে যে ঝলকি বলেছে যে মার্কেট যদি ধাড়ার রকেটের গতিবেগে উপর যায়, তো সেরকম ধাড়ার রকেটের গতিবেগে নিচেও নামবে, এটা পুলব্যাক করে উপর উঠে নাই, সেই কারণে ধাড়াম করে নিচেও নামে গেছে। কারণ মার্কেট যেমন লাগাতার 4-5 দিন নিচে নামেছে, সেমনি তো উপরেও উঠবে, একেবারে তো উপর না উঠবে যে লাগাতার 4-5 দিনেরটা একেবারে কভার হবে, ঠিক আছে? তো তেমনিভাবেই মার্কেট চলে ব্রাদার। আর CoinDCX-এ স্পন্সর না করার কারণ হচ্ছে যারা প্রফেশনাল ট্রেডার আছে, ঠিক আছে, তা তারা তো এন্ট্রি নেবে এবং তারা জানে যে মার্কেট কেমনভাবে চলে, মানে লাগাতার নিচে আছে মানে এরপর মার্কেট উপর উঠবে, তার ধাঁচটা প্রপার বুঝতে পারবে। বাট যারা নিজেকে অ্যাটিটিউড ট্রেডার ভাবে বা যারা রিটেলার আছে, তারাকে ট্র্যাপ করার জন্য এইসব কাণ্ডগুলো মার্কেট করে। নাইতো মার্কেট তো লাগাতার একেবারে উপর উঠে যেতে পারতো, যখন কোম্পানিকে টাকাই কামাতে হইতো তখন তো একেবারে উপর উঠে যেতে পারতো, বাট এমন হয় না। মানে যারা লাভ করেছে মানে বায়ার্সটাকে পুনরায় ডাকছে যে আসো, তো কি করা দরকার এইখানটাই না, বুলাতি है মগর জানে কা নেই। আর একটা বিষয় জানার আছে যে যখন অপারেটারটা ঢুকেছে তার একটা সাইকোলজি বুঝাই নিচ্ছি। এই জায়গাটা অপারেটারের ক্যান্ডেল কোনটা আছে? এই জায়গাটায় অপারেটারের ক্যান্ডেল আছে এইটা। চলো হরাইজন্টাল লাইনে বেরোছি। এই জায়গাটা অপারেটারের ক্যান্ডেল আছে এইটা। আর রিটেলারের লটা লাগাবে সে তার স্টপ লস, ঠিক আছে? তো চলো এটা একটা কালো দাগ দিয়ে নিচ্ছি। এই কালো দাগটা আছে অপারেটারের ক্যান্ডেল, মানে ইয়ার লিকুইডিটি, অপারেটারের লিকুইডিটি। আর এই যে চলো এটার একটা দাগ দিয়ে নিয়েছি। আর এই যে রেড ক্যান্ডেলটা দেখছো, এটা হচ্ছে রিটেলারের লিকুইডিটি বা ল, এটা একটা দিয়ে দিচ্ছি ইয়েলো। চলো ইয়েলো, ঠিক আছে? তো দেখো, তো এখানে অপারেটারে বাই করার চেষ্টা করবে রিটেলারের যে সবার লটা, সেই জায়গাটাই অপারেটারে বাই করার চেষ্টা করবে, মানে হচ্ছে সুইং ট্রেডিং করবে, ঠিক আছে? মানে সুইং রিটেলারের যে সুইং, সেই জায়গাটাই এন্ট্রি নেবে বা এন্ট্রি নেওয়ার চান্স রাখবে। মানে এরপর তুমি যদি ভাবো যে আমি সঠিক জায়গায় এন্ট্রি নেব, হবে নাই, তোমাকে সুইং ট্রেডিং করতে হবে, ঠিক আছে? তাহলেই এই এমনি সাইড বেস মার্কেটে বা টাইম পাস মার্কেটে তুমি ট্রেডিং করতে পারবে, ঠিক আছে? এখন ব্যাপার হচ্ছে এই অপারেটরের ক্যান্ডেলটি কত টাকার ক্যান্ডেল হতে পারে। এটি আমার অনুসারে 30-40 লাখ টাকার ক্যান্ডেল বটে, বাট এই 30-40 লাখ টাকায় সে 150-200 করোড় টাকাও কামাবে কে। তো এই 9 মিনিটের ভিডিওটাকে যদি আমি 1 মিনিট বা 30 সেকেন্ডে যদি এক্সপ্লেন করি, তো কনক্লুশন দাঁড়াচ্ছে যে অপারেটারের যোনখানে এন্ট্রি নিয়েছে তার কাছাকাছি জায়গায় তোমাকে সুইং এন্ট্রি নিতে হবে, মানে এই জায়গাগুলাই, ঠিক আছে? চান্স রাখবে এই জায়গাগুলো এন্ট্রি নেওয়ার। মানে তুমি যদি ভাবো যে একটি ভালো ক্যান্ডেল বনবে তারপরে আমি এন্ট্রি নেবো, বাট এমনি হয় না। এমনি তোমাকে সুইং ট্রেড বা সুইং এন্ট্রি নিতে হবে, ঠিক আছে? আর গৌতম ভাই এইসব এই সাইড বেস মার্কেটে কি বলেছে, এটা একটু শুনো মন দিয়ে। करते हो कभी ध्यान नहीं देते हो। जब भी मार्केट किसी जोन में हो
एक लाइन उस जोन के ऊपर वाले में ड्रॉ करो, एक जोन उस मार्केट के नीचे वाली लो पे ड्रॉ करो। जब भी मार्केट इतना टाइम पास करता है, आप एक बात समझिए, इस पे भरते हैं रिटेलर्स। अक्सर मार्केट क्या करेगा, अगर जिस साइड को भी पैसा देना है, लाइक अगर बायर को पैसा देना है तो पहले जाके बायर को निकाल देगा, अगर सेलर को पैसा देना है तो सेलर को निकाल देगा। पहले जाके ऊपर चले जाएगा तो कौन लपेटाएगा, सेलर का स्टॉप लॉस हिट हो गया मान लो। अब जैसे ही सेलर का स्टॉप लॉस होगा और भी बायर घुस जाएंगे कि चलो 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 मार्केट ऊपर जाएगा, ब्रेकआउट आ गया, हम लोगों ने गलती करा। अब मार्केट जब नीचे आएगा तो लोग बाय करेंगे और मार्केट इस साइड का मूव देगा, यहां पे जाके बायर को भी लपेट देगा। तो सेलर को भी लपेट दिया, बायर को भी लपेट दिया। अभी मार्केट उस लेवल को टच कर रहा है ना, लेट्स सी क्या होता है। मैं आपको क्या बोला था, मैं 5000 पीपल्स के बीच में ये एनालिसिस किया हूं और इसका रिजल्ट अभी आप देख रहे हो। तो कभी भी कंफर्टेबल ट्रेड नहीं देता है मार्केट, रिकॉर्डेड का ज्ञान नहीं देता है तुम्हारा भाई। अगर जो डेली कैंडल का स्ट्रेटजी आपको बताया है मैंने, डेली कैंडल स्ट्रेटजी, अब क्या करना है आपको, मान लो ये जो डेली कैंडल आपने पकड़ा और अगला कैंडल यहां से जा रहा है इसके ऊपर, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। आप यहाँ पे मान लो शॉर्ट के लिए 2 ट्रेड लोगे, कि शॉर्ट का 2 ट्रेड्स आप प्लान कर रहे हो। लेकिन अगर मार्केट का एक मेजर लिक्विडिटी भी इसी जगह पे है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, और ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत बड़ा गैप नहीं है, छोटा, ये गलत हो गया, एक कैंडल ऐसा दिखाता हूँ, रुको, ठीक है। अब मान लो ये जो कैंडल है, ये इन दोनों का हाई देखोगे आप तो ये यहाँ पे हाई है और इसका हाई यहाँ पे ये हाई है, ठीक है। तो अगर एक कैंडल यहाँ को ब्रेक कर दिया तो इस जगह पे स्ट्रेटजी नहीं लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही दूरी पे एकदम मेजर कैंडल भी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो इसीलिए सिर्फ डेली कैंडल नहीं, डेली कैंडल फ्रेश एरिया में हो वो भी ध्यान देना। और अगर डेली कैंडल के नियर बाय कोई मेजर लिक्विडिटी है तो उस डेली कैंडल का लिक्विडिटी को फाइंड आउट नहीं करना, मेजर लिक्विडिटी पे फोकस करना है। डायरेक्टली एक्सपेक्ट नहीं करना है कि मार्केट कहां से गिरेगा। मार्केट जब भी गिरेगा, मैं आपको लिख के दे देता हूं वो क्या कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, आप मुझे भी इन्फॉर्म कर सकते हो, आप खुद भी ये चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगा कि मार्केट थोड़ा सा गिरेगा, ठीक है। गिरने के बाद मार्केट जब एक बेस्ट कैंडल बनाए, पूरा बढ़िया कैंडल लगी, अब तो यहां से मार्केट ऊपर ही जाएगा। और इस बेस्ट कैंडल के बाद भी अगर मार्केट गिर जाए तो फिर इसके बाद अगर मार्केट रिएक्ट करता है और इसका लो ब्रेक करता है या कुछ भी, तब हम लोग समझ सकते हैं कि अब ये मार्केट सेल का एंट्री बना चुका है। क्योंकि एक बार जिससे खतरा है वो है कि हम कोई भी शॉर्ट का ऑर्डर लिए और उस शॉर्ट के ऑर्डर के बाद बायर आ गया, यही खतरा है। अगर ये बायर हार गया तो अपन यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। इसीलिए जब एक सेलर आएगा, पहला सेलर को हराएगा बायर और वो बायर को फिर से वापस सेलर हरा दे, तो हम लोग ट्रैप होने से बच जाएंगे। ये पीओबी ही देखना आप अभी जब भी बनेगा उस समय पे प्लान करेंगे। अभी सेलर आया, इस सेलर के बाद एक बायर आ जाए सबसे पहले और उस बायर को फिर सेलर हरा दे, हम लोग पकड़ लेंगे। सर हाउ टू फाइंड पैनिक पॉइंट्स ऑन चार्ट? इजी है मेरे भाई। किसी भी लेवल्स पे जहां से मार्केट बहुत ज्यादा टाइम पास करा है तो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं उस जगह पे। आप समझिए, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करा है, लोग इमोशनल होते हैं, लोगों को क्या लगता है कि बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, शॉर्ट कर लेते हैं, स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। और जब भी मार्केट बहुत ज्यादा एंट्री करने के लिए कंफर्टेबल दे लोगों को कि ले भैया शॉर्ट मार, ठीक है, कि भाई मैं गिरने वाला हूँ रे, मस्त एकदम शॉर्ट मार, छोटा सा तो स्टॉप लॉस, अरे इतना ऊपर तो आ गया हूँ, अब तो थोड़ा तो गिरूंगा ही रे, कमा लेगा तू, वो वाला एआई वॉइस में बता दिया। तब जो रिटेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो वहां पे सोचते हैं कि यार मैं थोड़ा सा स्मार्ट हूँ, मैंने सही जगह पे एंटर मार लिया, अगर यहाँ से रिवर्स करेगा तो पूरा ही पैसा कमा लूंगा। और अक्सर ये जो रिटेलर्स होते हैं वो चुना लगता है उनको। रीजन क्यों? क्योंकि जब भी मार्केट बहुत ज्यादा मौका देता है लोगों को शॉर्ट वॉट करने का, तो फिर असलियत में वो उसको काटना चाहता है और ठीक काट के फिर एक्चुअल फॉल वो लाता है, जो फॉल रिटेलर्स कभी पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है। तो पैनिक पॉइंट कहाँ पे आएगा? पैनिक पॉइंट वहां पे आएगा जहां पे जो भी मार्केट टाइम पास करा, जो भी लोगों को स्टॉप लॉस प्लेस करने का जगह दिया, ठीक उस लेवल पे, यानी कि लोगों का पेन, लोग स्टॉप लॉस कब काटते हैं? जब एक देखा हुआ लॉस से बड़ा लॉस उनको दिखने के, तो जहां पे उसका पेन का पीक पहुंचता है, पीक पेन, ठीक है, वो पैनिक पॉइंट होता है। वहां पे लोग अपने स्टॉप लॉसेस को काटेंगे और जब सारे लोग अपने स्टॉप लॉसेस को काटने में लग जाते हैं कि भागो भागो भागो, तब कोई स्मार्ट बंदा होता है जो उन सारे भागे भगोड़े लोगों का माल खरीद रहा होता है, और वही बंदा होता है ऑपरेटर। क्योंकि जब लाख लोग भागेंगे अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करके, तो वो सारे लाख ऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे ही हवा में तो कहीं गायब नहीं हो जाएंगे, कोई ना कोई बंदा तो उसको ले रहा होगा। आप अगर शॉर्ट किए हो तो स्क्वायर अप करोगे, बाय कर रहा है, कोई तो शॉर्ट पोजीशन मार रहा है बैठ के वहां पे। आप सेल किए हो तो आप क्या करोगे? स्क्वायर बाय किए तो आप क्या करोगे? भाई भागो भागो भागो, अब बाय नहीं चलेगा, स्क्वायर अप करोगे। कोई बंदा तो है ना उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, वही होता है बड़ा प्लेयर।
आप अगर नहीं देखे हो मास्टर क्लास 1.0 आंख बंद करके देखो, सिर्फ सुन भी लोगे ना तो भी तुम इतना सीखोगे कि तुमको लगेगा कि भाई यार ये क्या ब्रूटल गेम चल रहा है मार्केट का। देखो पहले ही आपको बता दे रहा हूं ताकि आप माइंड प्रिपेयर करके बैठो कि पूरा वीडियोस में आपको मिलेगा क्या, नहीं तो अभी छोड़ के जाना है, चले जाओ, सीखना नहीं है, मत सीखो। कोई देखो लूप वाला वीडियो जिसमें फिर से जर्नी 3-4 साल बाद घूमते रहो, कहीं फिर से कोई साइकोलॉजिकल वीडियो मिल जाए आपको तो फिर लगे यार गलती कर दिया था, पहले सुन लेना था ये बात। तो आई कैन गारंटेड कि लास्ट तक देखने के बाद अगर आपका टाइम खराब हो जाए या टाइम का 10x वैल्यू मिल जाए तो दोनों चीज आपको कमेंट करना है, ठीक है, पूरा वीडियो देखने के बाद। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो टेक्निकल और साइकोलॉजिकल का मिक्सचर होने वाला है। क्यों? अभी जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, सबसे पहला चीज क्या मैंने बताया कि बिग प्रॉफिट लोग बनाना चाहते हैं। मेरा ये डायलॉग से आप परेशान हो चुके भी होंगे कि अगर आप बिग प्रॉफिट बनाने के लिए बदले में बिग लॉस भी ले रहे हो तो ये बिग प्रॉफिट आप कभी सस्टेन नहीं कर पाओगे। यानी कि अगर आपको बिग प्रॉफिट बीपी बनाना है तो आपको एसएम लेना पड़ेगा, एसएल लेना पड़ेगा, स्मॉल लॉस, नॉट की स्टॉप लॉस, स्मॉल लॉस। स्मॉल लॉस से जब बिग प्रॉफिट बनता है तो वो प्रॉफिट आप सस्टेन कर पाओगे और वही प्रॉफिट आपको बड़ा करेगा, इतना दूर लेके जाएगा। फिर से छोटा छोटा फिर बढ़ा दोगे, फिर इतना दूर पहुंचोगे, फिर से छोटा छोटा लॉस देके एक बड़ा प्रॉफिट बनाओगे, आप एक अप ट्रेंड चार्ट में कन्वर्ट हो जाओगे। अभी क्या हो जा रहा है कि आप कंसोलिडेशन मार्केट में और चाहते हो यहीं से ब्रेकआउट दे दें, बड़ा प्रॉफिट बना ले, लेकिन क्या वो बड़ा प्रॉफिट थोड़ा सा बनता भी है? उससे भी बड़ा लॉस आता है, फिर बड़ा प्रॉफिट। वॉलेटाइल जर्नी चल रहा है। ये जर्नी आपको कभी भी एक प्रॉफिटेबल या फिर एक ऐसा ट्रेडर नहीं बना सकता है जो कि डिसिप्लिन होकर काम करता है, जो कि बड़े लेवल पे जाने वाला है आने वाला टाइम में, जो कि एक बहुत बड़ा कैपिटल आने वाले टाइम में मैनेज करने वाला है। क्योंकि जब तक ये जर्नी चल रहा है ना वॉलेटाइल वाला, और सब कोई न चाहते हुए भी यही जर्नी में है, उनको लग रहा है कि एक बड़ा प्रॉफिट मिल जाए जिससे कि 1 लाख कमा लो, उसके बाद तो फिर मजे ही मजे। फिर आप 1 लाख कमा लोगे तो क्या होगा पता है? पिछला 2 साल पहले एक बजट में एक बंदा ट्रेडिंग किया था, वो 2000-4000 का प्रॉफिट बनाता था नॉर्मली। बजट के दिन 2 साल हो गया शायद उस बजट का, 2.2 लाख का प्रॉफिट उन्होंने बना लिया था। और 2.2 लाख का प्रॉफिट बनाने के बाद फिर 2-4 हजार का प्रॉफिट छोटा लगने लगा। और पता है आपको, नेक्स्ट 5 डेज में ही सारा प्रॉफिट उसका वाइप आउट हो गया था। तो ये चीज के कारण माइंडसेट अलाइन नहीं हो पाएगा ना जब तक। मैं आपको डीप बातें बता रहा हूं कि आपको अगर बड़ा प्रॉफिट कमाना है, प्रॉफिटेबल एक अप ट्रेंड वाला ट्रेडर बनना है, तो आपका चार्ट ऐसे होना चाहिए। ये चार्ट मत बनाओ कि यहां से बड़ा हाई लगा देंगे, फिर बड़ा हाई लगा देंगे, फिर बड़ा हाई लगा देंगे। एक चार्ट को देखो आप, ये चार्ट फिर थोड़ा टाइम पास ऐसा होगा ही होगा और होना भी चाहिए। फिर ये चार्ट, फिर ये चार्ट। हाँ, कभी कभी क्या होगा 2-3 दिन लगातार हो जाएगा, बट फिर भी ये चार्ट जो है ना सबसे बेस्ट चार्ट होता है एक ट्रेडर का बड़ा बनने का। देखो, चेंज ऑफ कैरेक्टर जो ट्रेडिंग में होता है इतना खतरनाक लेवल पे काम करता है कि जब तुम एक साइड का ट्रेडिंग से दूसरे साइड के ट्रेडिंग में शिफ्ट होंगे और तुमको लगेगा कि अब बाइंग का ट्रेड नहीं, अब बस हो गया, अब सेलिंग का ट्रेड। यानी कि अगर मैं ऐसे बोलूं कि कब बाय करना है, कब तक बाय करना है और कब जाके बाय नहीं करना है, सिर्फ सेल करना है, वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलता है जब मार्केट अपने पैटर्न को चेंज करता है। अब आप समझो कि मार्केट अपने पैटर्न को कब चेंज कर रहा है। सीधी से आंसर चार्ट दिखा देगा आपको। कैसे चार्ट में देखोगे? ऑब्जर्व करो पास्ट के चार्ट को कि हर बार क्या करते हैं। जैसे मान लो यहां से मार्केट गिर रहा है तो आप एक लाइन लो, इसके ऊपर मार्क करो, दिस इज अ डाउन ट्रेंड, कि मार्केट जब भी हाई लगा रहा है उससे ज्यादा लो लगा रहा है। यहां पे कोशिश करा लेकिन उससे ज्यादा लो लगा, यहां पे थोड़ा सा ऊपर उठा बट उससे भी ज्यादा लो लगा, यहां से फिर थोड़ा सा ऊपर उठा बट उससे भी ज्यादा लो लगा। यानी कि बार बार मार्केट ऊपर जा रहा है पर मैग्नेट जो है इसका, यानी कि अगर मैं एक मैग्नेट लगाऊं तो ये मैग्नेट इसको नीचे की तरफ खींच रहा है। ट्रेंड चेंज कब हुआ? एक ऐसा जगह आया जब मार्केट यहां पे देखोगे कि रिजेक्ट कर दिया कि मैं अब नीचे नहीं जाऊंगा। रिजेक्शन यहीं से दे रहा है बट यहां पे फिर रिजेक्ट कर दिया कि नहीं अब नीचे नहीं जाऊंगा। यहां से क्या होना चाहिए था? मार्केट को और ज्यादा नीचे जाना चाहिए था बट नहीं गया। पहला पैटर्न। दूसरा चीज क्या हुआ कि इस बार जो फर्स्ट हाई था वो ये वाला था, वो ब्रेक हो गया, ठीक है। सेकंड जो हाई था वो भी ब्रेक हो गया। जब ये दो चीजें ब्रेक हो गया कि एक हाई और 2 हाई ब्रेक हो गया तो मार्केट का जो ये पैटर्न था वो चेंज हो गया। और कहीं ना कहीं अगर तीसरा हाई भी देखोगे, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो टेक्निकली पूरा ही पैटर्न चेंज हो गया। और ये जो मैग्नेट था जो अभी नीचे की तरफ इसको खींच रहा था वो अब उल्टा हो गया और ऊपर की तरफ खींचेगा अब इसको, ठीक है। और जब ये इसको ऊपर की तरफ खींचेगा तो तुम्हें करना कुछ भी नहीं है, ऊपर में जितने भी लेवल्स हैं जहां जहां से मार्केट पहले नोटंकी किया था वहां लाइन मार्क करो, इस मैग्नेट को उसके ऊपर ले जाके रख दो। अब ये लेवल इसको खींचेगा। ये तो एक बार में चला गया ऊपर, अलग बात है, बट अगर मान लो ऐसे भी रहता फिर इसको खींचता, ऐसे रहता फिर इसको खींचता। और यही काम है कि आप देखोगे इसके बाद कि मार्केट भले यहां से गिरा फिर खींच के ऊपर ले गया, गिरा फिर खींच के ऊपर ले गया, गिरा फिर ऊपर का हाई मार दिया। यानी कि अब मार्केट जब गिर रहा है तो मार्केट उसको ऊपर की तरफ खींच रहा है। इससे पहले जब मार्केट चढ़ रहा था तो मार्केट उसको नीचे की तरफ गिर रहा था। दिस इज द बेस्ट थिंग। अगर इस चेंज ऑफ कैरेक्टर को पकड़ते हो मजा आ जाएगा। रील एकदम खतरनाक बन गया हुआ, ठीक है। रील क्योंकि आपको मार्केट बुलाती है मगर जाने का नहीं वाला अप्रोच होता है कि आपको इतना इंड्यूस करेगा मार्केट की भाई इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, मारो ट्रेड यार, क्या कर रहे हो तुम, चौमो हो क्या, चुती हो क्या, ट्रेड करो, इतना फॉल कर गया गोल्ड, इतना राइज कर गया बीटी, तुम देखे छोड़ दिए, नहीं करूंगा यार, चुपचाप बैठ गए। तुम्हारे पास कैपिटल है, तुमने पता करा कि तुम्हारा रिस्क पर डे हो गया, बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी मार्केट तुम्हारे सामने लुभावना ला के रख दे, पर तुम नहीं डाल रहे हो पैसा, तुम नहीं कर रहे हो ट्रेड। सबसे बड़ा हार्डवर्क पूछोगे तो यही है कि तुम्हारे मन में इतना इच्छा होगा कि अब तुम्हारा लॉस रिकवर हो सकता है, जो दिन में तुमने लॉस किया, अब तुम एक बार डिसिप्लिन तोड़ के एक ट्रेड मार दो, पर तुम उस इमोशंस के अगेंस्ट जाके उस ट्रेड को नहीं किए। अपने ऊपर रूल बनाए कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। दिस इज द
वर्स्ट बोल सकते हो कि दिस इज द टफेस्ट थिंग जो एक ट्रेडर को करना पड़ता है, अपने आप को कंट्रोल। सबसे पहला ही कैंडल का लुक कहाँ पे है, लेबल के बाद फर्स्ट कैंडल जिसमें आपको थोड़ा सा भी बाइंग दिखा वो ये है। वहां से मार्केट निकला, निकलने के बाद अभी जो दूसरा लिक्विडिटी था उसके ऊपर का हाई बनाया है। अब आप पूछोगे कि अगर ये ट्रेड फेल होना होगा तो कहां से होगा, दिस इज द प्लेस जहां से अगर ये फेल होना होगा तो हो जाएगा। याद रखना इस बात को। आप पूछोगे यहां से ही फेल अगर होना होगा तो क्यों होगा, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट ने लिक्विडिटी लेके यहां से रिएक्शन दिया वैसे ही मार्केट का इसका लिक्विडिटी यहीं पे है। तो टेक्निकली अगर ट्रेड यानी सेलर साइड को सेलर को विन करना होगा तो दिस इज द पी फॉर सेलर, बेस्ट प्लेस फॉर सेलर। लेबल निकालना सीखो सबसे पहले कि लेबल यहां पे है तो जो बायर है वो यहां आया है। अब ये बायर अगर यहां आया है, आपके माइंड में डाउट आना चाहिए कि गौतम भाई ऐसा क्यों बोले कि 60-70 पिप्स नहीं 200 पिप्स का मूव देगा। ये डाउट बिल्कुल आना चाहिए कि 200 पिप्स ही क्यों, 50 पिप्स 60 पिप्स अदर डेज में बोलते हो, आज 200 पिप्स क्यों। एक बार लिखो 200 पिप्स, इसका रीजन देता हूं तुमको, और तुमको ना इससे ये भी पता चलेगा कि 200 मतलब कब आपको एग्रेसिव रहना है। सुनना 200 पिप्स का रीजन, तो 200 पिप्स का रीजन ये था कि मार्केट जो है वो सीटीसी कट गया, ये लेवल से मार्केट बायर आया, ठीक है। अब मैं क्या देखता हूं और आप भी देखो इस चीज को कि अगर मार्केट में बायर आता है तो बायर मैं यहाँ पे नहीं लेने का एक और रीजन था कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा मार्केट नौटंकी करे तब ट्रेड बने तो शायद लूं। इसका रीजन पता है क्यों, क्योंकि पता था मुझे कि इस पॉइंट के बाद जो लेवल है वो एक्चुअल में ये लेवल नहीं है, क्योंकि ये कोई लेवल ही नहीं है। अगर मैं बोलूं कि मार्केट यहाँ से निकल के यहाँ से फिर गिर जाएगा तो उसका चांस कम है, क्योंकि ये उस टाइप से दिख नहीं रहा है कि ये लेवल है। अगर यहां से मार्केट ऐसे गया होता, ऐसे जाके गिरा होता, लाइक इस तरीके से गिर के बाद टाइम पास करके तब गिरा होता, तब हम लोग इसको लेवल मानते हैं कि मार्केट यहां से गिर सकता है। बट आप देखो ये बस शार्प फॉल का एक कैंडल का हाई है, यानी कि ये लेवल नहीं है। तो लेवल असल में है कहां, इस जगह से अगर हम ढूंढने का स्टार्ट करें तो हमें अगर यहां लाइन लगाएं तो हमें लगेगा कि मार्केट यार यहां आएगा तो यहां आ जाएगा, और अगर यहां आ गया तो यहां आ जाएगा, और ये तो लेवल है ही नहीं। यानी कि मार्केट में जो इसके बाद लेवल बनता है वो सीधे इस कैंडल के ऊपर जाके इस जगह पे है। तो अगर यहां पे मान लो यहां पे अगर मार्केट आ जाता है लेवल आपका, तो कहने का यही मतलब है कि इस जगह से जो अगला लेवल है वो सीधे यहां तक है। कितना हो गया, 180 पिप्स। अब एक बात और हम लोग जानते हैं कि जो लेवल्स होता है मार्केट में वो ऐसा होता है कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, थोड़ा सा और ऊपर जाता है उसके, फिर मार्केट ट्रैप करता है। यानी कि अगर यहाँ पे बेस्ट लेवल है भी तो वो लेवल्स जो है वो मार्केट इससे थोड़ा सा ऊपर जाके गिरेगा, यानी कि इस जगह से गिरने का कोशिश करेगा। यानी कि टोटल मिला जुला के 15 से 150 से 200 पिप्स का मूव हो जाएगा अगर मार्केट पैटर्न बदलेगा। ये सवाल नहीं है, अगर बदलेगा तो वो कौन सा जगह होगा जहां पे बदल सकता है। दिस इज तो बोल सकते हो कि बेस्ट क्वेश्चन जो पूछना है अपने आप से, क्योंकि पैटर्न बदलेगा तो उससे तुम क्या फायदा उठा पाओगे, तुमको एंट्री थोड़ी मिलेगा। एंट्री तो तुमको यहां पता चलेगा ना कि कहां पैटर्न बदलेगा। तो सबसे पहले तुम समझो कि अगर ये इस बार गिर रहा है तो अपने दिमाग में रखो कि इस बार पैटर्न बदलेगा। ठीक, पहला क्वेश्चन। अब पैटर्न बदलेगा ये समझ लिए, हो सकता है ना भी बदले, एक स्टॉप पहुंच जाएगा। पैटर्न बदलेगा तो किस तरीके से बदलेगा मार्केट। मेरा एक रूल है, हमेशा आपको बताया हूं कि अगर मार्केट 1 लिक्विडिटी से आ रहा है, ठीक है, तो दूसरा लिक्विडिटी से पहले ही रिवर्स करेगा अगर इसको तीसरा लिक्विडिटी तक जाना है। और अगर ये इसको टच करता है तो फिर ये तीसरा नहीं जाएगा, ये नीचे वाला तीसरा जाएगा। दिस इज अ रूल कि अगर मार्केट 1 लिक्विडिटी ऊपर ब्रेक करके आ रहा है तो ये ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा, मोस्ट ऑफ द केसेस ये बीच से ही जाएगा। और अगर ये ब्रेक कर दिया तो फिर थोड़ा ऊपर जा सकता है, लेकिन वो यहां जाएगा। यानी कि अगर हम लोग ऐसे बोले कि दिस इज 3 लिक्विडिटी और मार्केट अगर यहां से आया है तो अच्छा 4 लिक्विडिटी, तो यहां पे डिसीजन लेगा ये कि इसको ये वाला जाना है कि ये वाला जाना है। अगर इस लाइन को ब्रेक कर दिया तो ये वाला जाना है, अगर ब्रेक नहीं किया तो मे बी ये वाला जा सकता है। ज्यादातर लोग तो लॉस में छोड़ दो, प्रॉफिट में ओवर ट्रेड करते हैं। होता क्या है ना कि एक डिजायर प्रॉफिट जब मिल जाता है लोगों को, कि उनका सपना होता है कि मान लो 10,000 रुपए कमाने, और 10,000 कमा लिया, उसके बाद जो कीड़ा होता है ना कि एक बार अपना बाउंड्री क्रॉस करके देखते हैं कहीं 12,000 बन जाए आज, और वो 10,000 में जब डेंट लग जाता है ना वो 8,000 हो जाता है, बस वहीं चला गया वो बंदा। अब उसको वो 10,000 इतना प्यारा होता है ना, मतलब समझो कि एकदम खूबसूरत घर बनाया उसने, एकदम सारा कुछ मिट्टी का घर होता है ना, पूरा एकदम नकाशी कर करके एकदम एक एक चीज सजाया, और एक छोटा सा गलती से ठोकर लग गया। अब उसको वो फिक्स कर ही नहीं सकता है,
जितना फिक्स करने की कोशिश करेगा उतना ज्यादा कचड़ा करके निकलेगा, और डिजास्टर में लास्ट में क्या होता है ना, गुस्सा आता है और उस घर को वो 1-2 लात मार के तोड़ के हटाओ, मेहनत करके अपना महीनों का मेहनत को लात मार के चल जाता है। ये नहीं करना है। उस घर में अगर एक डेंट पड़ गया है, बोलो कल फ्रेश माइंड से आके इस डेंट को सुधारूंगा, इस पे जो भी रिक्वायर होगा और खूबसूरत घर बनाऊंगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊंगा। अब ये 3 चीज कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, सुनना। लिक्विडिटी का मतलब क्या कि मान लो मार्केट यहाँ पे है, ठीक है, यही 3 चीज का कॉम्बिनेशन है। मान लो मार्केट एक लेवल पे है, ऊपर का लेवल ये है, नीचे का लेवल ये है, ठीक है, ये दोनों लेवल है। तो लिक्विडिटी तो इधर भी है, लिक्विडिटी इधर भी है, दोनों साइड में मेजर लिक्विडिटी है। तो सिर्फ लिक्विडिटी पकड़ेंगे कि मार्केट यहाँ तक गया है तो मार्केट तो इस जगह तक जाएगा, ठीक है, यहाँ तक का टच करेगा, तो हम लोग बाय का बिजनेस नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी के साथ क्या बोला, एक चीज पहला बोला लिक्विडिटी, दूसरा क्या बताया, ट्रेंड, और तीसरा बताया पास्ट मूव, ठीक है, पास्ट मूव। अब यहां पे ये लिक्विडिटी का टीजीटी नहीं लगा सकते हैं, इवन यहां पे मैं बाय साइड का ट्रेड भी नहीं मार सकता हूं, कि बिजनेस भी बाय का नहीं बना सकता हूं। क्यों? क्योंकि लिक्विडिटी तो सही है, ट्रेंड भी सही है, बट पास्ट का मूव जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, इसमें रिट्रेसमेंट नहीं है। समझे बात को? तो फिर क्या हो गया कि यहां पे इन तीनों में से ये नहीं है, तो मैं यहां पे बिजनेस नहीं बनाऊंगा। अब समझो कि मार्केट में लिक्विडिटी है, ठीक है, पास्ट मूव भी ठीक है, बट ट्रेंड नहीं है, ठीक है। इसका भी एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में क्या है, लिक्विडिटी है ऊपर, ट्रेंड, पास्ट मूव भी बढ़िया है, ठीक है, बट ट्रेंड यहां से यहां तक में काइंड ऑफ बोल सकते हो कि नेगेटिव हो गया है, जिसके कारण नीचे में भी एक लिक्विडिटी दिख रहा है कि मार्केट इसको भी टच कर सकता है। अब ऐसे सिनेरियो में क्या करूंगा, फिर बिजनेस ऊपर का नहीं बिल्ड करूंगा, मैं भी नीचे का करना पड़ेगा कुछ भी। अगर लिक्विडिटी, ट्रेंड और पास्ट मूव सब मिलके मान लो मार्केट यहां तक आया और यहां ग्रीन कैंडल बना रहा है या कुछ भी, तब शायद मैं ट्रेड ले लूं, तब शायद मैं इस पे एंट्री बना लूं, क्योंकि यहां पे मुझे तीनों चीज मिल रहा है कि लिक्विडिटी भी मिल रहा है, ट्रेंड भी मिल रहा है, पास्ट मूव भी दिखा रहा है कि सेलर ने कोशिश कर लिया, अब बायर का टाइम आएगा। यहां पे नहीं कर रहा था क्योंकि सेलर ने कोशिश ही नहीं करा, यहां पे नहीं किया क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल था, एक बार में जाएगा ही नहीं, सेलर और बायर दोनों आ सकता है। यहां पे इसीलिए बायर्स ने रख सकते हैं ऊपर का, क्योंकि सेलर जीत लगभग छोटा जीत हासिल कर चुका है। तो इसका कॉम्बिनेशन जो होता है ना, उससे ट्रेड जो है बिजनेस आप सेट कर सकते हो, तो वो वाली चीज है, ठीक है। बहुत मतलब मस्त चीज बताया मैं आपको ये वाला। मैं शॉर्ट किया हूं, देखो जो भी किया स्टॉप लॉस लगा लो उस अकॉर्डिंग, जैसे कि मान लो शॉर्ट किया हो तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो। हालांकि बहुत ज्यादा चांस है कि स्टॉप लॉस हंट करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको गिरना भी होगा ना, तो मुझे लगता है जैसे यहाँ से यहाँ तक जाएगा, जाने के बाद ये एक प्लेस हो सकता है जहां से मार्केट फिर से गिर जाए, ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नहीं गिरेगा तो फिर यहाँ पे एक जगह है और यहाँ पे जगह है, ये टोटल 3 जगह है जहां से मार्केट फॉल कर सकता है। क्योंकि अभी क्या प्राइस एक्शन है, डाउन ट्रेंड वाला, तो आप समझिए कि अगर ये प्राइस एक्शन में रहेगा ना, तो सारे सेलर्स जितने घुसे हैं इसमें, उन सारे को पैसा मिल जाएगा। और जितना मैं मार्केट को जानता हूं, ये पैसा तभी देता है जब मार्केट गिर के पूरा रिवर्स करना होगा, तब इनको पैसा दे देगा। समझे बात को? तो अगर ऐसे गिर जाता है तब मैं पक्का बोल रहा हूं मैं यहाँ पे बाय करूंगा। लेकिन अगर मार्केट पहले निकालता है तो यहाँ से और यहाँ से, इन तीनों एरिया से सेलर का एंट्री बनना स्टार्ट हो जाएगा। उससे पहले अगर गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे बाइंग होगा, ठीक है, क्योंकि अभी देखो किसी को नहीं निकाला, किसी को नहीं। तो अगर आप सेलिंग में हो तो मान के चलो कि अभी आपको यहां से निकाल सकता है ये। एक बात बताता हूं, मार्केट इजी या हार्ड आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग होता है। मेरे अकॉर्डिंग पूछोगे तो चार्ट बहुत इजी है, ट्रेडिंग इजी नहीं है, चार्ट इजी है। आप अगर बोलोगे कि ट्रेडिंग आसान है, इसका मतलब आप बोल रहे हो कि आपने अपने आप को कॉन्कर कर लिया है, कि आप ट्रेड दे रहा है प्रॉफिट और आप बैठे हुए हो कि यार प्रॉफिट्स मैं तो $1000 देगा तभी निकलूंगा, भले वो 400 जा रहा है, 500 जा रहा है, 600 जा रहा है। मेंटल कैपेसिटी आपका पीक लेवल पे है, वो ज्यादा टफ है। चार्ट का गेम इतना ही आसान है। अगर चार्ट किसी के लिए टफ है तो फिर आप शायद गलत रास्ते पे हो, या आपका अभी बहुत कम टाइम हुआ है। नहीं तो अगर आप बोल रहे हो कि चार्ट का गेम इतना आसान होता, तो आप समझो कि मैंने लाइव स्टार्ट होने से पहले ये डेस्टिनी भी मार्क किया है, और लाइव स्टार्ट मतलब होने के बाद ही, यहां से आने के बाद, और उससे पहले मैंने ये लेवल भी मार्क करा है। तो मैं अगर कर सकता हूं तो आप भी तो वही हो भाई, इंसान ही हो ना। लेकिन मैटर देखो, हार्ड क्या है? हार्ड ये नहीं है कि इसको पता करना, ये तो बहुत आसान है। हार्ड ये है इस पे ट्रेड लेना। हार्ड ये है कि मेरे ना करने के बावजूद मतलब आप इस पे ट्रिगर पुल किए। हार्ड ये है कि अगर ये रिवर्स कर रहा होता तो इस पे होल्ड कर देना बहुत आसान है, लेकिन इसको काटना इज वेरी टफ। यहां से मार्केट गया ऊपर, यहां पे कुछ क्वांटिटी रिड्यूस कर पाना बहुत टफ है, क्योंकि यहां पे आने के बाद आदमी का माइंड हाई हो जाता है कि यार अब तो मार्केट ऊपर ऊपर ही जाएगा। अगर मार्केट साइडवेज रह रहा है तो यहां पे होल्ड करना बहुत हार्ड है। इतना वेट करना कि मार्केट यहां तक आएगा, ठीक है, और मैं यहां पे निकलूंगा, इज वेरी टफ। यहां पे क्लोज कर देना इज वेरी इजी। समझिए,
ट्रेडिंग में हार्ड क्या है, आसान क्या है, समझना बहुत जरूरी है। ये हार्ड है, ये इस डेस्टिनी तक रुकना, इस डेस्टिनी तक इंतजार करना, इस डेस्टिनी तक को प्रॉफिट होल्ड करना। क्यों? क्योंकि इस पे एक कीमत है जो चुकाना पड़ सकता है। वो क्या कि मार्केट यहाँ पे आया और रिवर्स करके आपका स्टॉप लॉस खा गया। अब मान लो आपका प्रॉफिट चल रहा है यहाँ पे $1800, वो $1800 का जीरो होने का कुर्बानी आपको देना पड़ेगा, तो जाके आप कहीं वो चीज को पकड़ पाओगे। तो यस, ट्रेडिंग इतना ही आसान है, बट ओनली चार्ट। ट्रेडिंग आसान नहीं है, चार्ट का गेम बहुत आसान है। मार्केट किसको निकाला, जस्ट देखो, मार्केट निकाला किसको, बायर को। कहां पे? यहाँ पे 15 मिनट का कैंडल है, यानी किसको पैसा देना था मार्केट को, बायर को। अब यहाँ पे कैसे निकाला, सपोर्ट ब्रेक होने से बायर निकलता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होने पे सेलर निकलता है। फटा। अब हाई जो बनाया किसको रखा मार्केट ने, सेलर को रखा। सेलर को पूरा का पूरा इन्विटेशन दिया कि लीजिए भैया शॉर्ट कीजिए, और सेलर को निकाला भी नहीं। क्यों? सेलर कब निकलता, सेलर निकलता है इस हाई के ऊपर। तो सेलर को इन्विटेशन मिला, बट इन्विटेशन पे सेलर बैठा हुआ है। सेलर को प्रॉफिट दिया मार्केट ने, लीजिए भैया प्रॉफिट लीजिए, लेकिन सेलर को टारगेट नहीं दिया मार्केट ने, क्योंकि सेलर का टारगेट क्या है, सपोर्ट। अब यहाँ से फिर किसको निकाला मार्केट के, अच्छा बाय कर लियो, बाहर निकलो। कहाँ पे निकाला, यहाँ पे। अब जो मैं दिखा रहा हूँ उस चीज को ध्यान से देखो। कभी भी मार्केट में अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो या 5 मिनट में ट्रेड करना चाहते हो, तो आप बोलोगे कि मुझे 1 डे का कैंडल देखने का कोई जरूरत नहीं है, तो आप गलतफहमी में हो दोस्त। जो बड़ा डेटा है ना, जो बड़ा पर्सपेक्टिव है, जो बाइजनेस है, वो आपको 1 आवर, 4 आवर और 1 डे देख के मिलेगा। आपको याद होगा यहाँ पे वैसे तो मैंने यहाँ पे भी शॉर्ट बोला है और एक्जैक्टली यहाँ पे बाय बोला है, पर बीच का पर्सपेक्टिव तुम इजीली बिल्ड कर सकते हो। कैसे? बड़े टाइम फ्रेम पे लेवल्स मार्क करना स्टार्ट करो। कैसे मार्क करोगे, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मार्केट क्या करता है, स्टॉप बॉटम बनाने के बाद आप देखो एक ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाता है, तो लेवल्स कहाँ है, एक लेवल्स में आया, तो इतना नीचे दोबारा मार्केट आएगा, इतना आसान नहीं है। तो दूसरा कैंडल का लो मार्क करो। अब आपको 1 डे कैंडल में क्या दिख रहा होगा कि यार ये तो बस ऐसे ही टच कर लिया और बस ऐसे ही चला गया, ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। ये कैंडल कब बना है, 4 दिन बाद। मार्केट क्या करता है, ठीक नीचे गिरता है। आप लेवल्स मत भूलो, क्योंकि मार्केट भी कभी लेवल्स को नहीं भूलता है। और एग्जैक्टली इस लेवल को कितना ब्रेक किया, इतना सा ब्रेक किया, यानी कि ओनली 1 मिनट में अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस करोगे, एक सीओसी प्लेस करोगे, या सिर्फ बाइंग साइड का सोच लोगे, यू विल मेक हेल अमाउंट ऑफ मनी। पर यहाँ पे कौन बाइंग का सोचेगा? सोचो उस आदमी के पर्सपेक्टिव से जिसने इस कैंडल को इस टाइम पे देखा होगा, जब लेवल यहाँ पे था। बताइए कैसा दिख रहा होगा, ये ऐसा दिख रहा होगा, गाढ़ा लाल, गाढ़ा लाल। हालत खराब हो जाए बंदे का, वैसा है। आपको इस जगह पे जब 1 मिनट के कैंडल पे एक रिजेक्शन मिले, बाइंग साइड का सोचना है, और वो एक्सपेक्ट करना है जो भारत का कोई दूसरा ट्रेडर कर ही ना पाए। मार्केट अगर नीचे गिरा है तो ऊपर भी जाएगा, अगर ऊपर जा रहा है तो नीचे भी जाएगा। सो दैट्स द रीजन, जिस बंदे ने यहाँ हिम्मत किया बाय करने का, वो बनाएगा हेल अमाउंट ऑफ मनी। बट कहां तक बनाएगा, वो लेवल होगा ये वाला। देखो किस तरीके से ट्रेड पकड़ा जाता है वो भी बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। लेवल्स को मार्क कीजिए और इस लेवल्स के पास पहले एक ब्लाइंड ट्रेड प्लेस कीजिए। ब्लाइंड ट्रेड किसको बोलते हैं कि लिक्विडिटी को छुआ, एक ग्रीन कैंडल बना, एंड दैट्स इट, यू विल बाय। ये है पहला ट्रायल। इससे क्या होगा, अपॉर्चुनिटी छूटेगा नहीं। दूसरा ट्रेड ब्लाइंड मत प्लेस कीजिए, दूसरा ट्रेड सीओसी पे प्लेस कीजिए, यानी कि अगर ये ऊपर गया और फिर गिर के टाइम पास कर दिया तो सीओसी पे ट्रेड प्लेस कीजिए। और तीसरा ट्रायल मारिए, आपका पता है तीसरा ट्रायल, इसको एक बार प्रूव होके ऊपर जाने दीजिए और कोई रिट्रेसमेंट पे पकड़िए। सर यहां से क्यों रिवर्स हो गया, क्योंकि देखो एक अपना सेटअप है, और वो सेटअप ये कहता है कि मार्केट जो है जब बहुत ज्यादा ग्रीन 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 कैंडल हो, अभी ये पूरा रिवर्स नहीं हुआ है, अभी अगर यहां से ये कंटिन्यू हुआ ना तो फिर बड़ा रिवर्सल भी आ सकता है। तो मेरा ट्रेड भी है इसमें, ठीक है। तो ये क्या सिस्टम है कि जब भी मार्केट में बहुत बैक टू बैक ग्रीन कैंडल होता है, आपको नोटिस करना होता है कि उस पूरे भेड़ के खाल में कौन सा भेड़िया, यानी कि एक रेड कैंडल, या फिर मान लो मार्केट बार बार रेड कैंडल बना रहा है तो वो एक ग्रीन कैंडल, और जो भी वो ग्रीन या रेड कैंडल होता है उस लेवल पे मार्केट जो है अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिएक्ट करता है। क्योंकि आप समझिए जिस तरीके से मार्केट गिरा है, थोड़ा सोच के देखो, हर आदमी क्या होगा, नेगेटिव हो जाता है कि यहां से तो मार्केट अब गिरेगा। लगभग नीचे में बेस्ट लेवल बैठा हुआ है, सारा बंदा तैयार है कि भाई यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। तो जिसका भी प्रॉफिट भी चल रहा है उसको भी थोड़ा सा फाड़ने के लिए बेस्ट लेवल है कि चलो अनएक्सपेक्टेड जगह से मार्केट को उठाएं, और वही हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड जगह से मैं क्या बताया आपको कि जिस जगह से मार्केट उठेगा वो थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड होगा, और वही चल रहा है। एकदम बॉटम में आपको इस चीजों को प्रिडिक्ट करके बताया। 15 मिनट पे अगर मार्केट बेस्ट से बेस्ट कैंडल से भी अगर नहीं गिर पाया तो अब वो नहीं गिरा पाएगा, एक बार और ऊपर चढ़ेगा तब गिरेगा। तो शॉर्ट तो मैं कहीं मारने वाला हूं नहीं, तो मेरा माइंडसेट एकदम क्लियर कि मैं करूंगा तो बाय ही करूंगा, क्योंकि बायर्स ने प्रेशर दिखाया है पीछे से। इसके लिए मैं वो बेस्ट प्लेस ढूंढ रहा था जहां पे सबसे एक्सट्रीम नेगेटिविटी मार्केट लेके आए, जहां पे कोई सोचे भी नहीं। तो जैसे ही मार्केट ने एक सबसे पीक रेड कैंडल बनाया, यहाँ पे मैं क्या किया, कुछ भी नहीं, बस इस रेड कैंडल के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मैं बोला जिस भी कैंडल के अंदर ये कूदा है, मतलब समझ लो, आप इसका एग्जांपल देता हूं, आपको नहीं पता है, एक फाइट चल रहा है, ठीक है, आपको एक बेस्ट फाइटर चाहिए अपने लिए, बेस्ट फाइटर चाहिए जो पूरा एकदम पावरफुल, एक बॉडी बिल्डर चाहिए मान लो, जो आपको हायर करना है। लेकिन वो बॉडी बिल्डर सब बता रहा है ये देखो मेरा 6 पैक एब्स, कोई बोल रहा है ये देखो मेरा ये डोले सोले, लेकिन तुमको लग रहा है कि यार ये जो है खोखला है, स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाए, तुमको समझ नहीं आ रहा है किस पे दाव लेना है। तो वहां पे ना एक फाइट कंपटीशन चल रहा है। एक फाइट कंपटीशन में एक बंदा है जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, आज तक उससे वो सबको हरा दिया जो भी उससे लड़ रहा है। तुमने उस बंदे को चैलेंज दिया कि अगर मैं एक बंदा हायर करना चाहता हूं जो मान लो इस सुमो पहलवान को जाके हरा देता है,
मैं उसको हायर कर लूंगा। तो वही मैं भी किया, मैं पहले वेट किया कि उस जगह का विनर कौन, सबसे बेस्ट फाइटर कौन, सबसे नेगेटिव कैंडल कौन, तो वो निकला ये। मैंने बोला जो इस कैंडल को हरा देगा मैं उसको जॉब पे रख लूंगा। तो जैसे ही ये कैंडल हराया मैं बोला ठीक है ब्रो, यू डिजर्व माई एंट्री, तुमने इस रेड कैंडल को हराया है, मैं तुम पे भरोसा करके दाव लगा रहा हूं, क्योंकि तुमने मेहनत करा है उस जगह से उठाने का जहां पे सोचने में भी फटे आदमी का। इसीलिए जो माइंडसेट है मैं हमेशा क्लियर रखता हूं कि मुझे क्राइटेरिया टफ से टफ, मेरे ट्रेड्स बनेंगे ही नहीं। मैं अगर किसी से भी पूछूं कि तुम बताओ इस लाइन से इस लाइन तक में रेसिस्टेंस कहां कहां है, तो वो बोलेगा कि यहाँ है गौतम भैया, फिर यहाँ है गौतम भाई, फिर यहाँ है गौतम भाई, उसके बाद नहीं है। तो यहाँ है तो यहाँ तो रिएक्ट ही नहीं किया, कोई रेड कैंडल का लो नहीं ब्रेक किया। फिर बोलेगा यहाँ है तो यहाँ एक रेड कैंडल का लो ब्रेक किया और मार्केट यहाँ तक गिरा, मतलब काफी ज्यादा गिरा। उसके बाद बोलेगा यहाँ है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बाद एक रेड कैंडल का लो ब्रेक किया। यानी मतलब अगर कोई बंदा सिर्फ बैठा रहे बढ़िया सेटअप का इंतजार में लिक्विडिटी पे कि बेस्ट ट्रेड लूंगा, अपनी छपरी ट्रेड नहीं लूंगा, तो मार्केट उसको बहुत अच्छा पैसा देगा। और यहाँ से देखो कितने बेहतरीन तरीके से गिर रहा है मार्केट। अब उसी तरीके से देखो नीचे में कहाँ है, अब यहाँ पे है। अब अगर तुम सोचो एकदम बेसिक थिंकिंग की तरह से सोचो कि जब यहाँ पे लिक्विडिटी था तो मार्केट इस लिक्विडिटी के पास एक रेड कैंडल का लो ब्रेक किया और रिवर्स किया, तो यहाँ पे लिक्विडिटी अगर है तो जो बड़ा ट्रेड बनेगा वो यहाँ आने के बाद एक ग्रीन कैंडल का अगर हाई ब्रेक करता है तो बनेगा। उसके बीच का सारा ट्रेड जो है वो थोड़ा एवरेज ट्रेड बनेगा, मतलब कि बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। बड़ा एक्सपेक्टेशन किसको बोलते हैं? अब मैं यहाँ पे पकड़ूंगा ट्रेड तो छोटा छोटा ट्रेड मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ये मूव मिलेगा, ये बाइंग मिल जाएगा, यहाँ पे ये बाइंग मिल जाएगा, ये बाइंग मिल जाएगा। बड़ा ट्रेड अगर मुझे चाहिए तो मुझे कॉर्नर पकड़ना होगा, लाइक ये ट्रेड पकड़ना होगा तब मुझे, या ये ट्रेड पकड़ना होगा जैसे इसमें दिया है इतना मोमेंटम, या मुझे ये ट्रेड पकड़ना होगा। तो देखो पहले ही बता दे रहा हूँ, अगर बड़ा ट्रेड चाहिए तो बड़े जगह पे मिलेगा, छोटे ट्रेड्स चाहिए तो अब छोटे ट्रेड्स बीच में पकड़ लेंगे। प्राइस एक्शन आपको पूरा बता दूंगा क्या होने वाला है, किस तरीके से मार्केट मूव करेगा, फुल सिंक्रोनाइज वे में चलेंगे। आज मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि जितना भी कैंडल्स बनेगा वो सारे लगभग प्रिडिक्ट मैं कर लूंगा। जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने वाला हूं, ये स्ट्रेटजी आपको शायद महीने में 2 से 3 बार मिलेगा, लेकिन ये स्ट्रेटजी का बोल सकते हो कि बहती गंगा में हाथ नहीं, पूरा नहाने तक का मैं प्लान इसमें आपको बता देता हूं। अब बहती गंगा क्या है? मार्केट जब भी सुपर बुलिश हो या तो सुपर बेयरिश हो, यानी कि गोल्ड लगातार फटना स्टार्ट कर गया, पूरा फटा है, या तो कोई चीज जब रॉकेट बन जा रहा हो, मार्केट जो होता है प्रॉफिट बुकिंग लाता है। हर बायर को लगता है या फिर हर सेलर को लगता है और कितना प्रॉफिट देगा, और कितना प्रॉफिट देगा, और वो लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जब उनका बढ़ रहा होता है, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा होता है, तो वो अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ मारते हैं, चाहे 20% क्वांटिटी हो, 50% क्वांटिटी हो, स्क्वायर ऑफ मारते हैं। अब लाइक यहाँ पे इस जगह पे क्या हुआ कि मान लो किसी बड़े प्लेयर ने 20% अपना एग्जिट मार दिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, तो मार्केट में बाइंग ऑर्डर जो है लगने के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, उसको देख के और 50% लोग जो है, 60% लोग जो है, जो कि लग रहा था कि कितना पैसा और मार्केट कितना पैसा देगा, वो लोग भी जो है मार्केट में एग्जिट मार देते हैं। और ये एक इफेक्ट क्रिएट करता है जो कि कई बार 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 3 ग्रीन कैंडल तक जाता है। और उसके बाद आपको बस एक कदम काम करना है कि आप बस एक सेलर का इंतजार करो। अगर आप मार्केट फॉल कर रहा है तो बस आप इसके बाद एक फ्रेश सेलर का इंतजार करो और इस पे आप एंटर करोगे, इसके ऊपर स्टॉप लॉस डालोगे और जो भी आपको रिसेंट में लो दिख रहा है उसका टारगेट रखोगे। एक्यूरेसी, फाड़ लेवल, रिस्क रिवॉर्ड तो पूछो ही मत। आप यहाँ पे देखिए 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल, 1 ग्रीन कैंडल, 2 ग्रीन कैंडल और एक छोटा सा रेड कैंडल। पहला इसमें एंट्री बताया आपको लाइव मार्केट में, इसके ऊपर स्टॉप लॉस, मार्केट फॉल, टारगेट। दूसरा टारगेट एंट्री आपको दूसरा एंट्री मैंने आपको कहां बताया, जब ये ग्रीन बन गया, 2, 3, 4 कैंडल ग्रीन बना, एक रेड कैंडल, इसका एंट्री, इसके ऊपर स्टॉप लॉस और टारगेट तो अभी लाइव मार्केट में आपका चालू ही है। यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुकिंग आप देखोगे, इस प्रॉफिट 2-3 कैंडल के बाद जो ये सेलर का कैंडल है, ये एंट्री कैंडल हो जाता है आपका, बस एक नेगेटिविटी और आपको ट्रेंड में एंट्री। बट ये कब लागू होगा? ये तब लागू होगा जब मार्केट सुपर बुलिश, अल्ट्रा सुपर बुलिश और अल्ट्रा सुपर बेयरिश है। तो देखो कि मार्केट ने इस लाइन के नीचे क्या करा, मार्केट आया इस लाइन के पीछे एक मोमेंटम देने की कोशिश करा। रनिंग में बहुत लोग इसमें घुसे भी होंगे और रनिंग में बहुत सारे लोग इसमें निकले भी होंगे। बट द थिंग इज कि ट्रेड लेने का जो क्राइटेरिया होता है वो कैसे होता है कि अगर यहाँ पे आप सोचे कि मुझे इस लेवल पे ट्रेड चाहिए, फॉर एग्जांपल ये लेवल ऑफ लिक्विडिटी है और मार्केट यहाँ पे आया, ठीक है, आया, एक ग्रीन कैंडल भी इवन बना दिया मान लो, ठीक है, बट उस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हुआ और कोई भी ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडल जिसका
मार्केट जब हाई ब्रेक करता है, ठीक है, जैसे इस कैंडल का किया, तब आप एक चीज समझते हो कि जब ये लिक्विडिटी पर आ रहा था तो यहां पे कौन आएगा? यहां पे बायर आएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में जो बायर है वो इस जगह पे निकल चुका है, उसने सेल ऑर्डर डाला। अब ये जो बायर ने जो यहां से यहां तक में बायर किया था, इसने सेल ऑर्डर डाला। ये सेल ऑर्डर एक्चुअली में कोई तो ले रहा है, तभी तो मार्केट चल रहा है। और अगर सेलर ज्यादा होता और बायर कम होता तो ये ऐसे ही और फॉल करते जाता। लेकिन इस पॉइंट पे, सिर्फ इस पॉइंट पे ऐसा हुआ कि जितना भी सेलर्स ने माल बेचा उससे ज्यादा बायर्स ने माल खरीदा, तभी तो जाके एक रेड कैंडल या ग्रीन कैंडल के ऊपर गया, यानी कि सेलर से ज्यादा यहां पे बायर आया। और जब यहां पे सबसे ज्यादा बायर आया तो आप इस चीज को देख के सिम्टम्स लेके माइंड में ये डाल सकते हो कि अगर यहां पे सेलर्स से ज्यादा बायर है, कहां पे? लिक्विडिटी के एरिया पे, यानी कि पीक नेगेटिविटी के एरिया पे, तो इसका मतलब है कि जितने भी रिटेलर्स ने पोजीशंस काटा है उन सारे पोजीशंस को किसी बड़े प्लेयर्स ने यहां पे एक्यूमुलेट किया है। और ये बंदा अगर अब इतना देर तक एग्रेसिव नहीं था, गिरने दे रहा था, बट ये एक ही कैंडल है जिसपे सेलर से ज्यादा बायर आया है, तो इस पे मैं दाव लगा सकता हूं और इसके ऊपर एंट्री या इसके क्लोजिंग पे एंट्री लेके मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस डालूंगा और फिर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि किसी भी बड़े लिक्विडिटी पे मार्केट अगर बार टैप कर रहा है, टच कर रहा है, इसका मतलब अब उस एरिया में लिक्विडिटी नहीं बचा है। जितने लिक्विडिटीज थे सारे यूज हो चुके हैं। और अगर किसी एरिया में लिक्विडिटी नहीं है, यानी कि लिक्विडिटी क्या करेगा? लिक्विडिटी एक फोर्सफुल करता है, मतलब रेजिस्टेंस का काम करता है, सपोर्ट का काम करता है कि मार्केट जब भी जाता है गिर क्यों जाता है उस जगह से? क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी है, लोग सेलिंग का बड़े ऑर्डर डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सेल का सेल कटेगा, बाय हो जाएगा उनका ऑर्डर। तो जो बाय होगा तो उसके कारण कटेगा कि चलो वो लॉस बुक करेंगे, बहुत सारे लोग ब्रेकआउट देंगे। तो इसके कारण जब ऐसा हो जाता है तो इस सिनेरियो में मैं कभी नहीं सोचता हूं कि मार्केट यहां से जो है अगला बार आएगा तो इतना फॉल कर जाएगा ना। जब आप मार्केट में स्टार्ट करते हो आपको क्या लगता है कि ये गेम असल में चार्ट्स का है, ये गेम असल में कैंडल्स का है, ये गेम असल में लेबल्स का है। बट जैसे जैसे अभी आप हो सकता है 1 महीने मार्केट को दिए होंगे, 3 महीने मार्केट को दिए होंगे, स्टिल यू थिंक कि मार्केट में लेबल्स, चार्ट, कैंडल्स इसी का गेम चलता है। लेकिन जब कोई बंदा 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल, 3 साल दे देता है, दिस गेम इज नॉट अबाउट चार्ट्स, नॉट अबाउट कैंडल्स, नॉट अबाउट लेबल्स, ये गेम असल में साइकोलॉजी का है। बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, एकदम बच्चे की भाषा में समझा रहा हूँ। अगर सीख गए तो फाड़ोगे लिटरली, अगर नहीं सीख पाए तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना ताकि फिर इजी हो। एकदम इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं तुमको ये चीजें नहीं समझा सकता हूं। जब भी कोई बहुत बड़ा फॉल आता है, क्योंकि यहां से यहां तक मैं आया, तो बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुकिंग करने लगते हैं और कुछ लोग जो है वो बॉटम कैच करने वाले होते हैं। इसके कारण एक मार्केट रिएक्शन देता है जिससे मार्केट एक लेवल तक जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एग्जिट करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्टिल होल्ड कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है मार्केट रिट्रेस करके फिर तो गिरेगा ही। तो ऐसे में जब भी मार्केट जिस लेवल को क्रिएट करके वापस से गिरना स्टार्ट करता है, यानी कि यहां पे गिरना स्टार्ट करता है, वो कुछ नहीं करना है, उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। दोबारा से जब भी मार्केट उस लेवल को टच करता है, इनका एसएल जो है वो यहां पे हिट हो जाता है, क्योंकि मार्केट जानता है कि कुछ लोग जो हैं जो बड़े टारगेट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि इसका ब्रेकडाउन आ जाए और नीचे आ जाए, वो जब तक निकलेंगे नहीं तब तक बड़े प्लेयर्स को क्वांटिटी मिलेगा नहीं। तो वो चाहते हैं कि मुझे गिराना तो है पर उसको निकाल के जो अभी भी होल्ड करके बैठा हुआ है, क्योंकि मार्केट कभी भी नहीं चाहता कि किसी को पैसा दे। तो इसके कारण मार्केट जो है कई बार गिरेगा, लेकिन एक्चुअली में सबसे बड़ा फॉल करने से पहले, ठीक सबसे बड़ा फॉल करने से पहले वो मतलब बोल सकते हो कि एग्जैक्टली तूफान से पहले वो एक सन्नाटा क्रिएट करेगा और जाके सबको यहां पे निकालेगा और अगेन ट्रेंड पकड़ लेगा। और ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उनको पता है कि जो भी बंदा इस रिट्रेसमेंट को झेला है उसको एक बार और पेन दो, उसको एक बार और डराओ और उसको उस हद तक डराओ कि वो पोजीशन छोड़ दे। दिस इज कॉल्ड सब्सिक्वेंट कैंडल, ठीक है। इसके लिए क्या चाहिए? एक बिग कैंडल चाहिए और उसका लेबल्स चाहिए, बस। मुझे नहीं लगता है कि शायद इससे पहले किसी ने भी आपको ये चीजें बताई होंगी या आप खुद भी देखे होंगे। मार्केट रॉकेट की तरह मूव करते जाए और अगर किसी भी जगह से स्ट्रगल करे और एक लेवल क्रिएट करके दे तुमको सामने से कि देखो ये लेवल, तुम उस लेवल को भूलोगे नहीं, क्योंकि वो लेवल काम आने वाला है फ्यूचर में। हर आदमी क्या सोचेगा, जब यहाँ आ जाएगा ना तब बाय का सोचेगा। तुम्हें एक स्टेप और भले ऊपर में हो, तुम समझना एक लेवल मार्केट ने क्रिएट करा है ना, उस लेवल पे आने का चांसेस है। तो टॉप से टॉप में शॉर्ट करोगे, तुम बहुत बड़ा रिस्क रिवॉर्ड बुक करोगे, जस्ट लाइक द टेलीग्राम ट्रेड्स जो हम लोगों ने 1156 में आज आपको दिया। अब मार्केट यहां तक आ गया, इस लेवल को टच कर दिया। टच करने के बाद रिएक्शन जरा देख रहे हो तुम, 400 पिप्स। अब एक बार लिक्विडिटी ले लिया, यानी कि अब अगर दूसरी बार आया तो या तो उससे पहले उड़ेगा या तो उसके बाद उड़ेगा, उस जगह से नहीं उड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक लिक्विडिटी ले लिया है। पॉसिबिलिटीज, गारंटी कोई चीज का नहीं।